भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पावन धाम पुट्टपर्ती यानी प्रशांत निलयम में हिमाचल प्रदेश के बच्चों का एक दल 10 अक्टूबर 2010 के दिवस एकत्रित होता है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के सम्मुख दशावतार की वो रंगारंग प्रस्तुति लेकर जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो भगवान इतने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि रात के 10 बजे तक भगवान इस कार्यक्रम में बैठे रहते हैं। उसी कार्यक्रम की एक झलक, एक प्रस्तुति आज उस प्रोग्राम की 10वीं वर्षगांठ के दिन हम सब देखने के लिए यहाँ पर आपको आमंत्रित करते हैं। आप सब कहीं पर भी नहीं जाइएगा, क्योंकि आज आप वो सब चीज़ें, वो डेप्थ, वो गहराइयों तक उस कार्यक्रम को देखेंगे जो कि भगवान श्री सत्य साईं बाबा द्वारा पूरी तरह बच्चों को आशीर्वाद से भरा हुआ है। Om Shri Sai Ram. My most humble pranams at the lotus feet of our most beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. We are greatly indebted today, Bhagwan, for you have permitted us to be in Kulwant Hall today. Bhagwan, after a long gap of 35 years, you visited Shimla, Himachal Pradesh, our Deva Bhumi. Today's program is an integrated activity of the students of Shri Satya Sai School Anand Vilas and the Village Integrated Program of Himachal Pradesh. A small child of 7 and a man of 70 are included in the participants. It will start with an invocation by the school. The tribals participating in this invocation today, Swami, they have come from far off places in Himachal Pradesh. They have braved torrential rains, landslides, road blockades, and have fasted for days together to have a divine glimpse of today. Bhagwan, the students will follow it with a dance drama, Dashavatar. Their love and adoration has brought the whole Himachal at the lotus feet, invoking your blessings. Please bless us, Swami.
Jai Sai Ram. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। Sai Ram, 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 Sai
साई तेरी नगरी में जो सच्चे मन से आया रे, मन की मुराद पूरी होई, मुँह मांगा फल पाया रे। मन की मुराद पूरी होई, मुँह मांगा फल पाया रे। आखिए देखो ईश्वर जीवे रामोरी महिमा गाओ। Om Sai Ram. My most humble pranams at the lotus feet of my beloved Lord Bhagwan Sri Satya Sai Baba. We, the devotees of Himachal Pradesh, are indeed indebted to Bhagwan for his divine visit to Shimla in the month of April 2010. He not only appreciated the Sri Satya Sai school children and the Bal Vikas program, but also invited the program to Prashanti Nilayam. It was the 3rd of October when I landed in Bangalore, and I was told telephonically by one of the ashram boys that I had to join the Vidya Vahini group for an interview at 4 o'clock in the Prashanti Nilayam Mandir. Unbelievable. Could Swami really have called us? I rushed to Puttaparthi and found myself in the mandir. Bhagwan glided in, and I got the opportunity to give him the letter. And I said, Swami, the children have come with the cultural program. Please bless us. He most lovingly smiled and said, But things were not going to be so easy as I thought. Days were passing. We met all the authorities, but they would not give us the time or the day, for they said that Swami is not too well. However, we had faith and we intensified our prayers, and each one in their heart felt that Bhagwan will bless us. This faith fructified on the 10-10-10 when Swami did come. He not only blessed us, but
gave each and every participant his loving glimpse. We could feel that all this downpour of love was really preparing us for the future. This was the last cultural program that Bhagwan was to see. For after that, he did not see any other cultural programs. Swami, for this, we are all so grateful to you, and we thank you from the bottom of our hearts for making each and every one feel so blessed. Jai Sai Ram. जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि Guruji, what for and how did Bhagwan Vishnu come as an avatar on this earth? जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा हर ही कृपा निधि सज्जन केशव धृत कल की शरीरम जय जगदीश हरे जय साईश हरे जय साईश हरे। इस उद्घोष से संपन्न हुआ दशावतार को आज 10 वर्ष संपूर्ण होने को आए हैं। भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए तथा करबद्ध आभार व्यक्त करते हुए मुझे आज अत्यंत हर्ष एवं प्रसन्नता होती है कि हम उस परम पुनीत ईश्वरीय सानिध्य को प्राप्त कर पाए। हम बच्चों द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों को भी भगवान की इतनी सराहना एवं प्रशंसा प्राप्त होगी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आनंद विलास के लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान का स्पर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान का संभाषण प्राप्त होना हमारे द्वारा किए गए अनंत पुण्यों का ही फल है। आनंद विलास के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए महीनों तक के परिश्रम को 10 अक्टूबर 2010 को दशावतार स्वरूप में स्वामी के श्री सानिध्य में इतनी प्रशंसा, इतना प्रेम, इतना प्रोत्साहन प्राप्त होगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस विषय में मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती है। हमारे इस सौभाग्य के लिए मुझे सिर्फ एक ही कथन याद आता है कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे प्रभु, तुम्हारे बिना हमें किसकी शरण है? हे प्रभु, तुम्हारे बिना हमारा कौन है? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परतीश्वरः रक्ष रक्ष साईश्वरः रक्ष रक्ष परमेश्वरः। जय साई।
सूर्याय नमः ॐ Oh, Manu, please help me. I'm a poor little aquatic animal. They call me Meena, a little fish as I am. And the big fish comes out of the water as Shri Matsya Avatar. Then came the time, that immemorable time, when it dawned on the Devtas and the Asuras, why not create something which will give them Amratva, that is immortality? Thus began the churning of water with the use of Mandharachal Parvat. Mandharachal begins to drown, and the Savior comes in the form of Kurma Avatar. वेदानुधरते जगन्निवहते भूगलम् उत्बिभ्रते दैत्यायनुदारयते बलिं छलयते क्षत्रिं क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यं मातात्मते म्लेच्छानुवृच्छयते दशानुकृते कृते कृष्णाय तुभ्यं नमो नमः कृष्णाय तुभ्यं नमो नमः कृष्णाय तुभ्यं नमो नमः। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविधक शरीरा, हरि ही कृपानिधि सज्जन पीरा, साईं कृपानिधि सज्जन पीरा, साईं कृपानिधि सज्जन पीरा। ओम जय साई राम। बाबा के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, जब जब धर्म का हानि हुआ, इस धरती पे भगवान विष्णु, मत्स्य, कश्यप, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम और बुद्ध और कल की अवतार लेके इस सृष्टि पे अवतरित हुए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैं साईं की, मैं अपने साईं की बात कर रहा हूं, जो कलयुग के अवतार है और साक्षात नारायण है। इस सृष्टि को अधर्म से धर्म की ओर ले गए मेरे साईं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है। हर इतवार को मैं पुजारी जाता था बच्चों को नृत्य सिखाने के लिए, और वहां के बच्चों में इतना आनंद, इतना उत्साह, वो मेरी प्रतीक्षा करते थे कि साहू सर कब आएंगे। जब हम वहां पहुंचते थे, बच्चों के अंदर वो एक अलग सा ही ऊर्जा को अनुभव करता। मैं उसको अपने शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकता। सभी बच्चों के अंदर एक आध्यात्मिक, छोटे छोटे बच्चे, इतना कोरा कागज और इतना पवित्र बच्चे, उनके साथ मुझे नृत्य सिखाने का बहुत आनंद आया। और बच्चे मेरे राह देखते थे साहू सर कब आएंगे। जब हम वहां पहुंचते थे, बच्चे वहां बच्चों को एक एक भगवान के, विष्णु के एक एक स्टोरी को डिपिक्ट, एक एक अवतार की स्टोरी को डिपिक्ट करना, फिर उनके बारे में बताना, फिर उस चीज को बच्चे के अंदर डाल देना और नृत्य के माध्यम से उनको सब कुछ बता देना। तो मेरे लिए एक मुश्किल टास्क था, लेकिन बाबा ही के आशीर्वाद से वो सब कुछ सरल और सहज होते जा रहा था। जब हमारा नृत्य संपूर्ण तैयार हो गया और हम पुट्टपर्ती को जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, तो जब पुट्टपर्ती पहुंचे और हम वहां सुनने को आया कि बाबा ने हमको, अभी हमारा पता नहीं, बाबा परीक्षा ही ले रहे थे, तो वो हमारा नृत्य अभी बाबा ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो उनका परीक्षा था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि बाबा ने 10 अवतार को 10-10-10 के लिए चुना था। वो उनका लीला था,
वो तो हमको समझने से परे थे। हम लोग परेशान हो रहे थे कि हमको कब टर्न कब आएगा, हमको कब बारी मिलेगा, कब बाबा के सम्मुख हम नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इतने दिनों का मेहनत हमारा, इतने दिनों का प्रयास, कब बाबा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन वो दिन आ ही गया। तस जब आया तो बाबा के साथ वो पल में अपने मुख से बयान कर ही नहीं सकता। वो कई बैंकुट लोग से कम नहीं था। वो पुटप्रति वो उत्साह, वो पर्व, बाबा के सम्मुख जो नृत्य, मेरे एक एक बच्चे अवतरित होके, जब ऐसे लग रहा था भगवान विष्णु ही एक एक अवतार लेके अपना लीला खुद देख रहे हैं। जब हम नृत्य के अंतिम पड़ाव यानी कल की अवतार जब आए तो उस श्लोक के बारे में बताना चाह रहा हूं। पूरा कुलवंत हॉल ऐसे गूंज गया, ऐसे लग रहा था भगवान साई कल की हमारे सम्मुख ही प्रकट हो गए। म्लेच्छ निवह निधनी कर यसी कर वाणम ध्रुम केतु किमप कराणम केशवध्रुत कल की शरीर जय जगदीश हरे केशवध्रुत साई शरीर जय जगदीश हरे केशवध्रुत साई शरीर जय जगदीश हरे। उस श्लोक के साथ पूरा कुलवंत हल तालियों के साथ गुड़गड़ाहट से पूरा कुलवंत हल आवाज से, इतना ध्वनि से ऐसे गूंज गया। तो ऐसे लग रहा था कि सक्षत कल की अवतार साईं हम सम्मुख सबको अपना सानिध्य, अपने कृपा से कृपा बरस रही हम सबके ऊपर। वो दिन अविस्मरणीय है जो मैं कभी अपने शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकता। नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो नारायणाय सगुण ब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो। Narayan, Narayan. Can you see Prahlad? I can see him. Do you know he was a great devotee of Bhagwan Vishnu, and this was not liked by his father Hiranyakashipu. Narayan, Narayan. Hiranyakashipu was given a boon that he will not die in the hands of someone who had taken birth from a mother's womb. He will not die in day or night. Neither he will be killed by a weapon, nor a man or an animal will kill him. Narayana, Narayana. Oh, is that so? ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय। Who is this Narayana? Who at all is Narayana? Who has taught you all this? I am the God. I am the Lord. I am the Lord of the universe. Me, and only me, ought to be praised. None else. Who is Prahlad? Just kill him. My dear followers, kill this son of mine. He has Narayana on his tongue. Kill him. Where is your Narayana? My Narayan is everywhere. All the living beings, all the non-living things have Narayan in them. Does this pillar contain your Narayana? Yes. Oh Bhagwan, please, please keep up to my devotion. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana.
our beloved Lord Bhagwan Sri Satya Sai Baba took a unique avatar once again to come as Sri Narasimha Avatar to save one of his beloved devotee Prahlad. Tava kara kamala varena khamada bhuta shringam Dalita maharana kashyaputano bhringam Keshavadhrita narahari rupam Jaya Jagadish Hare Jai 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 Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare भगवान ने आश्वासन दिया कि धर्म के उत्थान के लिए वे युग युग में धरती पर पधारते रहेंगे। भगवान के अवतार का तत्व मानव की समझ से बाहर है। 20 नवंबर 2009 की ये बात है। स्वामी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाल विकास के बच्चे अलग अलग पालकियों में अलग अलग अवतारों का रूप धारण कर सुसज्जित हुए। हजारों लोग इन अवतारों के सामने नतमस्तक हुए। क्या मालूम था हमें कि यह स्वामी द्वारा रचा हुआ ही एक संकल्प था जो 10/10/2010 को फलीभूत हुआ। अप्रैल 2010 में स्वामी शिमला आए, आनंद विलास और बाल विकास के बच्चों को ब्लेस किया। स्वामी ने कहा, स्वामी इज वेरी हैप्पी। उन्होंने हिमाचल को निमंत्रण भी दिया कि एक कल्चरल प्रोग्राम लेकर वे पुट्टापर्ती आए। फिर क्या, तैयारी शुरू हो गई। चाहे वो लिखने वाले हों, चाहे गीत संगीत वाले हों, चाहे डायलॉग रिकॉर्डिंग वाले हों, आनंद विलास वो बाल विकास के बच्चे और गुरु सभी में एक नई उमंग का सृजन हुआ। सभी ने रात दिन एकजुट होकर ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सत्य साई बाबा के उस रंग मंच पर, जिसे हम साई कुलवंत हॉल के नाम से जानते हैं, निश्चय किया कि हमारी रंगारंग प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ हो। जिस 10/10/10 की हम बात कर रहे हैं, वह दिवस है जब भगवान बाबा के सामने हमारे प्रदेश ने एक रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसका नाम था 10 अवतार। बहुचर्चित ये प्रस्तुति भगवान बाबा को इतनी पसंद आई कि वे रात को 10 बजे तक हम हिमाचल वासियों के साथ रहे। ऐसा लग रहा था मानो स्वामी का हमें छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। आज उसी दिन की 10वीं वर्षगांठ है। पूरे 10 साल बीत गए, परंतु ऐसा लग रहा है मानो कल ही की बात हो। Sri Ram Avatar came as an embodiment of valor to put an end to all Rakshasas who were a threat to mankind. Mother Sita proved a chaste wife. She is sitting in the Ashok Vatika.
राम को भूलो ये देखो रावण आया है, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम? राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया? गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ है। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम के पाने को है सीमा, रावण समय है मांग ले क्षमा। बज सत्य का डंका, जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने आओ रघुराई। सुनो राम जी आए, ओए राम जी आए, श्री रामचंद्र आए। 10/10/2010 आज भी मुझे वो स्वर्णिम तिथि याद है जब हम आनंद विलास के बच्चों को लेकर स्वामी के समक्ष एक नाटिका प्रस्तुत करने गए थे जो दशावतार से संबंधित थे। बहुत ही दिव्य अनुभव है और भगवान की कृपा है कि हमने भगवान के सामने वो कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं आपको कुछ लम्हे वहाँ के बताना चाहती हूँ। जब हम पुट्टापर्थी पहुँचे तो पुट्टापर्थी पहुँच के हमें लगा कि ये बहुत ही आसान काम है, जाते ही हमारा प्रोग्राम स्वामी के सामने हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि भगवान जब कोई काम सौंपते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा होती है। हमारे साथ भी वैसा ही हुआ, हमारी परीक्षा हुई। हमने वहाँ पर कुछ दिन तक प्रैक्टिसेस की प्रोग्राम की, बट प्रोग्राम के बीच में बड़े लोगों से सुनने में मिला कि प्रोग्राम की स्वीकृति स्वामी से अभी नहीं मिली है, तो शायद प्रोग्राम नहीं होगा। तो हमारी आशा जो है निराशा में परिवर्तित हो गई और हम लोग जितने भी वहाँ गए थे सब अपने अपने माध्यम से प्रेयर करने लगे। मैं और मेरे साथ कुछ अध्यापिकाएं और डॉम इंचार्जेस थी। हम लोगों ने एक योजना तैयार की। योजना इस प्रकार से थी कि हम गणेश मंदिर में जाकर, जो गणेश गेट पे टेम्पल है, वहाँ पर जाकर गणेश भगवान को मनाएंगे। उसके लिए हम 108 नारियल वहाँ पर फोड़ेंगे और 108 परिक्रमाएं उनके नाम की करेंगे। सभी लोग सहमत हुए और अगले ही दिन हम 3 बजे सुबह ब्रह्म वेला में वहाँ पर गए और हमने 108 नारियल वहाँ पर फोड़े और 108 भगवान की परिक्रमाएं ली। प्रभात फेरी अटेंड करने के बाद हम वापस अपने प्रोग्राम की प्रैक्टिसेस लेने के लिए चले गए। जब हम वहाँ पर गए तो हमें उसी दिन समाचार प्राप्त हुआ कि स्वामी ने प्रोग्राम की स्वीकृति दे दी है। हम बहुत खुश हो गए और जोश जोश में हमने काम बहुत तेज़ी में प्रारंभ कर दिया। अब वो दिन आया जब स्वामी ने 10/10/2010 को वो प्रोग्राम हमारा देखा और सभी को बहुत आशीष प्रदान किया। बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाई, बच्चों के साथ बातचीत की और जितने भी लोग गए थे सबको आशीष प्रदान किया। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे भगवान की कृपा से उनकी आरती उतारने का मौका मिला और आज भी मैं भगवान की उसके लिए कोटि कोटि शत धन्यवाद हूँ कि भगवान ने हमारा आनंद विलास से पुट्टापर्थी का जो यात्रा थी उसको परिपूर्ण किया। जय साईं। महाभारत 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 महाभारत।
जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहु तबहि। अक्टूबर माह में हमारी यात्रा 15 दिन के लिए पर्ती के लिए रही। इस माह में हम 150 से ज़्यादा बच्चों के साथ स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स और डेवोटीज़ को मिला के 200 से ज़्यादा बड़ा ग्रुप वहाँ पर्ती के लिए पहुँचा। और पहले ही दिन भगवान बाबा ने इतने बड़े ग्रुप को नोटिस भी किया। हम क्लास 2nd से 8th तक के बॉयज़ और 8th क्लास की गर्ल्स को लेके पेरेंट्स के साथ मिलके पर्ती के लिए पहुँचे। इसके बाद रिहर्सल करने के लिए हमारा फुल पैक्ड शेड्यूल तैयार किया गया। एक टीचर्स के पास 16 से 20 के करीब बच्चे होते थे, जिनको टीचर्स ने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और रिहर्सल के टाइम पे वहाँ तक पहुँचाना होता था। शनिवार और रविवार को एक पूरे तन मन धन से अपने आप को समर्पित करते हुए सभी लोग इकट्ठे होते थे और फिर इस रिहर्सल को करते थे। खैर, हमें 1-2 बार कुलवंत हॉल में प्रोग्राम के रिहर्सल करने का टाइम भी मिला, पर प्रोग्राम का होना अनिश्चित सा लगने लगा था। स्वामी का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं था और इसी के कारण ऐसा लग रहा था कि शायद प्रोग्राम ना भी हो पाए। पर कहते हैं कि भोले भाव मिले रघुराया, चतुराई न चतुर्भुज पाया। हम सब ने 8 या 9 तारीख को निर्णय किया कि हम सब मिलके भगवान की 108 बार साई गायत्री करेंगे और फिर भगवान से प्रेयर भी करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्वामी के सामने हो पाए। और ऐसा हुआ भी। स्वामी का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा और स्वामी के मन पे भी। और हमें शाम को ही न्यूज़ आई कि भगवान बाबा अगले ही दिन हमारा प्रोग्राम देखने के लिए तैयार है। भगवान बाबा ने हमारे सामने प्रोग्राम की प्रस्तुति को देखा और हम सबको अपने दर्शन से उन्होंने हमें एक ब्लेसिंग भी दी। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम हमारी विशेष के अकॉर्डिंग संपन्न हुआ। बहुत दिनों के बाद भगवान बाबा ने इतनी देर तक बैठ के किसी प्रोग्राम को देखा था। वहाँ पे जितने भी डिवोटी थे वो हमसे बोल रहे थे कि भगवान बाबा का स्वास्थ्य इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी भगवान बाबा आज बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। कहते भी हैं, पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की ब्लेसिंग को लेके 10 अवतार इस प्रोग्राम को संपन्न करने के साथ और भगवान की एक आरती उतारने के बाद जो मुझे भी ब्रदर राजीव के साथ आरती उतारने का मौका मिला, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम ये संपन्न हुआ। ओम सर्वं श्री साईश्वरार्पणमस्तु। Now let us rejoice and celebrate in the presence of our divine enchanter, the Kalki avatar, Bhagwan Sri Satya Sai Baba, who is amongst us today. He has come with the message of Satya, Dharma, Shanti, Prem and Ahimsa. He has come to transform humanity with a weapon of love. मलेच्छनिवः निधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् सायीधृतकलकी शरीरम् जय साईश हरे सत्य साईश हरे। जय जय साई हरे, जय जय साई हरे,
जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय जय साई हरे, जय साई हरे। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिवस वाकई में विस्मरणीय है। 10 साल हो गए हैं, परंतु जैसा कहा गया 10 साल तो हो गए हैं, परंतु ऐसा लग रहा है मानो कल ही की बात हो। और वाकई में वो ऐसी चीज थी, वो ऐसा एक वाकया था, भगवान श्री सत्य साईं बाबा के साथ हमारी मुलाकात थी, जो कि इस दिल में पूर्णतया बस गई। एक एक लम्हा उस दिवस का, यानी कि 10 अक्टूबर सन 2010, आज 10 साल हो गए हैं, परंतु एक एक लम्हा जो है हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा का इतना प्रेम, अगाढ़ प्रेम, वो खुशबू, भगवान की वो मुस्कान, हर एक चीज हमारे दिल में बसी हुई है। करीबन 100 बाल विकास आनंद विलास के बच्चे, बाल विकास गुरुज, हम सब जितने भी हिमाचल प्रदेश के डिवोटीज वहां पर पहुंचे हुए थे, भगवान ने लबालब कर कर हमें ऊपर तक अपने प्रेम के साथ भर दिया। आप देखिए, 10-10-10 कोई प्रस्तुति नहीं थी, भगवान का एक संदेश था, भगवान का एक आदेश था कि हम सब शिमला से उठकर, हिमाचल से उठकर प्रशांति निलयम पहुंचे। प्रशांति निलयम के साईं कुलवंत हॉल सभागार में हमने वो प्रस्तुति दी, जिसे भगवान ने इतना सराहा कि रात के 10 बजे जब मुझे भगवान ने बुलाया और पूछा कि क्या कुछ लोग शिमला वापस जाता है, तो मैंने कहा भगवान हाँ जी, करीबन 30 लोग जो ट्राइबल्स हमारे साथ गए हुए थे, उन्हें वापस कर्नाटक एक्सप्रेस में दिल्ली की ओर पलायन करना था। 10 बजने को केवल 10 मिनट रह गए थे। भगवान कह रहे हैं जाइए, मैं बैठा हूं, तुम जाओ। और हमने आव देखा ना ताव, उठे, इशारा किया, इशारे हुए, और 30 के 30 लोग अपना सामान ऐसे के ऐसे उठाकर, जब साई कुलवंत हॉल से निकलते हैं, सामान उठाकर बाहर रोड तक पहुंचते हैं, तो रोड पर क्या देखते हैं, 7 गाड़ियां लाइन में खड़ी हुई है। हमारे ये 7 वाहन भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने पहले से ही तैयार रखे हुए थे कि जाइए और पुट्टपर्थी के रेलवे स्टेशन इनको लेकर जाइए। और वही हुआ। सरपट दौड़ती वो गाड़ियां जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं, मेरे मन में एकाएक ख्याल आया, रेल तो अब तक जा चुकी होगी, परंतु वहां पहुंचकर पता लगता है कि नहीं, सिग्नल अभी डाउन नहीं हुआ है और रेल सिग्नल पर ही खड़ी हमारा इंतजार कर रही है। जब हम रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं, पहुंचते हैं अंदर, तो आप देखिए, यकीन मानिए मेरी बात का, कि जब हम एंटर करते हैं तो रेल गाड़ी भी तभी एंटर करती है, छुप छुप करती हुई अंदर रेलवे स्टेशन में आती है, और हम सब अपना स्थान पा लेते हैं कि जहां जहां पर भी हमें सीट मिली हुई थी वहां वहां पहुंच जाते हैं। मन में एकाएक ख्याल आता है कि भगवान, इन सभी ने कुछ खाया पिया तो नहीं, भूखे ही क्या सफर करेंगे क्या? तो इतने में देखते क्या है, 30 फूड पैकेट्स को लेकर, साथ में 30 पैकेट पानी के भी लेकर व्यक्ति आता है और कहता है कितने चाहिए? मैंने कहा प्रभु 30। तो उन्होंने कहा लीजिए 30। और बातें करने को बहुत कुछ है, परंतु बात भगवान श्री सत्य साईं बाबा की, वो 30 पैकेट हमें बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे, जितने पैसे जेब में थे उससे भी कम रेट में जो है वो उन्होंने हमें प्रदान किए। ट्राइबल्स बैठ गए गाड़ी में। जब मैं वापस आता हूँ, मैं सोच रहा था कि भगवान अभी भी बैठे हुए होंगे, परंतु भगवान जा चुके थे, साई कुलवंत हॉल खाली था। परंतु वो यादें जो भगवान श्री सत्य साईं बाबा मुझ पर छोड़ कर गए हैं, हम सब पर छोड़ कर गए हैं। भगवान बाबा ने प्रोग्राम के दौरान कम से कम, मैं अपनी गिनती जो कर रहा था, 18 बार चरण स्पर्श हुए। और मुझे ही नहीं, हर एक को, हर एक बच्चे के साथ उन्होंने बातचीत की, हर एक को दुलारा, हर एक से प्रेम से बात की, हर एक के सिर पर हाथ रखा। आप देखते जाएंगे जितने वीडियो में
जितना कुछ दिखता है भगवान सबसे मिल रहे हैं, सबके बीच में विचरण कर रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण भगवान राम हमारे बीच में घूम रहे हों, और सभी ने सराबर होकर अभी तक यादें संजो कर रखी हुई हैं कि कैसे कैसे भगवान ने हमारे साथ बात की। मैं तो अपने बारे में कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था वहां बैठकर ऐसा कि भगवान क्या आपको मालूम होगा कि मैं कौन हूं। मैं भी शायद भगवान सोच रहे होंगे कि टीचर ही तो नहीं है आनंद विलास के। भगवान ने एकाएक मुड़कर मुझे कहा सर्जन यानी कि डॉक्टर, और भगवान जैसे कि सब कुछ जानते हो, मेरी मन की बात भी जान रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं। और आप यकीन मानिए वो दिन शायद मेरे अपने भविष्य का भी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कहें या प्रोफेशन में कहें, तो वहीं पर स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी भगवान के द्वारा कि आज के बाद तेरा दायित्व क्या होगा, तुम्हारा दायित्व क्या होगा। और उसी दायित्व को लेकर आज कितनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान हमें दे देते हैं। कितनों को, सभी जितने भी हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं या कहें तो अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कैसी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मिलती हैं। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ भगवान ने लिखा हुआ होता है, सब कुछ निहित होता है। भगवान ने सब हमारा फॉर्च्यून जो है, हमारा भविष्य जो है, एक एक शब्द भगवान ने लिखा हुआ है। और कितना सुनहरा भविष्य हमें भगवान ने दिया हुआ है। हम आज भी याद करते हैं वो दिन जब भगवान श्री सत्य बाबा अपने सामने इतनी बार उन्होंने कहा है, बुला बुला कर, जब तक हम सोचते आए थे कि भगवान शायद कभी तस्वीर एक खिंचा लेंगे आपके साथ, परंतु भगवान ने सराबोर कर दिया। भगवान पहले आनंद विलास आए, आनंद विलास में उन्होंने कितने दिन, 3 दिन तक हमारे साथ रहकर दिन से रात तक, रात को भी भगवान इंटरव्यूज देते थे। हमारे बाद उन्होंने हमें आमंत्रित कर दिया बच्चों को। बच्चों का कार्यक्रम इतना अच्छा पसंद आया भगवान को कि उन्होंने आमंत्रण दे दिया कि आओ साईं कुलवंत हॉल में आओ, वहां पर आके अपनी प्रस्तुति दो। और यदि हम याद करें वो 10 दिन जो निकले हैं, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, रात दिन हम सोचते थे भगवान कब मौका देंगे, कब हमें बुलाएंगे, कब परमिशन देंगे। क्योंकि आपको मालूम ही है परमिशन लेनी पड़ती थी साईं कुलवंत हॉल में, कब भगवान इशारा देंगे कि आइए प्रस्तुति दें। परंतु वो जो 9 दिन हमारे बीते, वहां भी 9 का नंबर आता है। 9 डिवाइन डेज हम भगवान की प्रार्थना करते रहे। लोगों ने साईं गायत्री करी, लोगों ने हर एक जगह पर बैठकर साईं पूरे के पूरे प्रशांति निलयम में कहीं ना कहीं बैठकर सबने मेडिटेशन किया, सबने प्रार्थना की भगवान आज मौका दीजिए, आज मौका दीजिए। सुबह बैठते थे, शाम को बैठते थे दर्शन में कि भगवान आएंगे और हमारे प्ले कार्ड को देखेंगे, हमारे बच्चों के प्ले कार्ड्स को देखेंगे, भगवान कहेंगे हाँ आइए आज प्रस्तुति दें। और जब 9 तारीख को मालूम पड़ा कि भगवान ने कहा कि हाँ कल आपकी प्रस्तुति है, आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे रोंगटे कैसे खड़े हो गए होंगे, हमारे अंदर वो उमंग कैसे भर गई होगी, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी थी, कैसे जो प्रैक्टिसेस होती हैं साईं कुलवंत हॉल में कैसे हुई होंगी। वो जो दिमाग के अंदर जो बिल्कुल एक लावा सा फूट रहा था, एक जो वोल्केनो जो हमारे अंदर जो उपद्रव मचा रही थी, उसका फूटने का समय आ गया था। वो कैसे निकलकर कैसे खुशियां बिखेरती हमारे बीच में, कैसे वो रंग बिखेरती साईं कुलवंत हॉल में, वो सब होने वाला था। 10 तारीख वो दिन था, वो बिल्कुल प्रीमियर का दिन था, जिस दिन हमारा प्रीमियर जो है 10 को 10 अवतार का होने वाला था। भगवान बाबा ने ऐसे आशीर्वाद दिया, एक एक बच्चे को, एक एक गुरु को, एक एक कोऑर्डिनेटर्स को, एक एक हिमाचल वासी को आशीर्वाद भगवान ने दिया। और ये जैसे अभी हमारे जो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के आर्किटेक्ट्स हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर सर, नतमस्तक उनके चरणों में हम सभी हैं, पूरे हिमाचल वासी हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय स्टेट प्रेसिडेंट होते हुए इतना सहयोग दिया, इतनी परमिशन ली भगवान से इतना आशीर्वाद हमारे लिए मांगते थे। और उस समय भी दीवार के अगेंस्ट, दीवार के परे खड़े होकर हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम देखते हुए हमें आशीर्वाद दे रहे थे। उसी तरह डॉक्टर नीता खन्ना जो कि हमारी नेशनल बाल विकास कोऑर्डिनेटर हैं, उनके पूर्णतया प्रयास के साथ, उनके एक एक दिन, उनका एक एक जो न्यूरॉन है दिमाग का, वो इस प्रोग्राम में लगा रहता था और आज भी लगा रहता है। उनके हम नतमस्तक हैं सभी हिमाचल वासी, क्योंकि उनके रहते ही कार्यक्रम संभव हो पाए। कुछ भी संभव नहीं है यदि बड़े हमारे साथ नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है यदि आप सभी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमेशा, भगवान किसी ना किसी रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। और आप सभी जो इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े भी छोटे भी, सभी के बीच में भगवान श्री सत्य बाबा वास करते हैं। और भगवान बाबा इतना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं आप सभी के थ्रू कि हमारे बच्चे, हमारे बाल विकास के बच्चे, हमारे यूथ, हमारे जितने भी बहन हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जितने भी लोग हैं, हम सब कार्य तभी कर पाते हैं जब हमें सहयोग मिलता है, हमें स्फूर्ति मिलती है, हमें बल मिलता है आप सभी के उस साथ का जो भगवान श्री सत्य बाबा आपके थ्रू हमें देते हैं।
ओम जय श्री
Sai Ram. My congratulations to everyone who is being part of this organization and also particularly in this program. और स्वामी एक बात बोलते हैं कि हेड इन द फॉरेस्ट एंड हैंड्स इन द सोसाइटी. अगर ये चीज की महसूस किया जाए, महसूस करने की बात आए, तो वो इस प्रोग्राम के जरिए महसूस किया गया था. और अगर हम बोले, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत सारे अनुभव थे और सारे अपने अपने अनुभव बोले हैं. ऐसे अगर गिनती किया जाए तो मैं एक बोलना चाहता हूं और वो है पर्टिकुलरली जब आप देखेंगे ये प्रोग्राम का वीडियो, तो स्वामी जब सामने आते हैं तो वो अचानक अपना आपको घोड़े के ऊपर देख के उनका चेहरा में एक अलग ही तरीका का आनंद थी. और मैं उसी आनंद के बारे में बात करना चाहता हूं जो जिसके लिए हमारा दिमाग ने काम नहीं किया था, हमारा दिल ने काम किया था. और उसी तरह से जब जैसे ही प्रोग्राम चलता रहा और प्रोग्राम खत्म होने पर भी आ गया था, आरती भी हो रही थी. शायद सबको मालूम नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोल रहे थे अभी जैसे कि हम लोग बहुत सारे दिन इंतजार करना पड़ा था. तो ये वो पल थी जब पार्टिसिपेंट्स का टिकटें हो चुकी थी और उनका जाने का टाइम था. और उस दिन हम लोग ये प्रोग्राम देते वक्त किसी ने ये महसूस नहीं किया कि आज हमको जाना है. और एक ही उस पूरी कुलवंत हॉल में सिर्फ एक ही ऐसे प्राणी या एक ही ऐसे थे जो हमारा खाना पीना जाना ट्रेन का सबका इंतजार था. तो वो सिर्फ और सिर्फ ये अनुभव नारायण का है, ये अनुभव भगवान के बारे में है. तो इसमें सबकी अपनी अपनी अनुभूति होती है और सबकी नारायण के साथ किसी की भी कनेक्शन दिमाग से नहीं होती कि शरीर से नहीं होती, वो दिल का कनेक्शन है. तो अगेन आई वुड टेल द एक्सपीरियंस ऑफ हेड इन द फॉरेस्ट हैंड्स इन द सोसाइटी वाज वेल अंडरस्टूड, वेल ग्रैब्ड थ्रू दिस एक्सपीरियंस. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई कैन टेल. एंड सबको मेरे तरफ से, हमारे सबके तरफ से सबको स्वामी को प्रे करते हुए यही बोलना चाहता हूँ कि हम इसी तरह से जुड़े रहें. और ये जो मार्च महीने से अभी तक सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल इतना काम कर चुकी है ऑनलाइन के बारे में, वो सब स्वामी की कृपा से हो रही है. और इसी तरह से हम और अच्छा काम करते रहे और आगे. जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शिव जना शेखरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलदीपा आश्रित कल्पलदीपा आपकादवा ओम जय जगदीश हरे. माता पिता गुरुदैवम मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे. नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे. ओम रूप जय शिव साई महादेवा सत्य साई महादेवा. मंगल आरती अंदु मंगल आरती अंदु मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे. नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो